Hello everyone, I am here to deliver a speech on International Day Against Drug Abuse and Electronic Trafficking. The decision to mark International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking was taken on 7th December 1987, Resolution 42 upon 112 of the United Nations. General Assembly. The key objective of the Assembly was to strengthen global action and cooperation in making the international society free of drug abuse. On 26 June, every year International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed to spread awareness about the extreme culture and economic harm the trade is still doing across the globe. It is necessary to strengthen global action and cooperation to achieve the goal of an international society of drug abuse. As we all know that drug is an illegal matter. However, some people inject it, drink or smoke it. Consuming drug have a harmful effect on us both mentally and physically. The drug seller create a network through which they target students and makes them addicted to drugs. The main aim of the dealers remain to create a vast network by attracting students and sell them for free at an early stage. It is noticed that student majority consume drug out of unfair expectation and stress. When a student fail to get any kind of emotion support, they turn toward drug in order to calm their agitation or anger. In some cases, reasons remain due to poverty. Students involved in selling drug to make a sum out of it. By such act, a vicious circle is formed of drug addicted. Due to drug consumption, it makes students mentally and physically weak. They tend to stay depressed and experience various life-taking disease. It's difficult to recover a drug addicted and involve a high price for the procedure of the successful. How to prevent drug? Due to drug addicted, you may feel that you have no hope to getting better. But no matter how bad the habits are, you can get rid of them with your perseverance and patience. Begin by explaining the reasons for quitting, as this will help you stay strong throughout the process. Make a good plan and seek help from a counselor and support group to quit and start your life without drugs. These are some points to help you how to prevent drugs. Step number 1, determine why you do it. Be honest with yourself about why you use drugs or alcohol and admit to the shortcoming. Step 2, let go of denial. Listen your rational side that tells you that you are addiction of unhealthy. Step number 3, learn new coping skills. Break habit and introduce now healthy ones. Recognize. Step number 4, recognize your triggers. Indefinitely, the people's place and situations that can trigger your addiction. Step number 5, change the way you live. Break free from environments that support your addiction. Don't frequent the places you used to and make new friends. Step number 7, create a support system. Keep close the friends and family that support your recovery and communicate with them about your success and frustration. Step number 7, celebrate your success. Set ambitious goal and reward yourself when you complete them, ever small ones.
थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को इस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलेक्ट्रिक ट्रैफिकिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 42/112 के माध्यम से नशीली दवाओं को दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करने का निर्णय 7 दिसंबर 1988 को लिया गया था। इस सभा का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समाज को नशाखोरी से मुक्त बनाने में वैश्विक कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करना था। 26 जून को हर साल ड्रग एब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चरम संस्कृति और आर्थिक नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जो अभी भी दुनिया भर में व्यापार कर रहा है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक कार्रवाई और सहयोग का मजबूत करना आवश्यक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ड्रग्स एक अवैध मामला है। हालांकि कुछ लोग इसे इंजेक्ट करते हैं, इसे ड्रिंक करते हैं या धूम्रपान भी करते हैं। ड्रग का सेवन मानसिक और शारीरिक दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। जिस दवा विक्रेता एक नेटवर्क बनाते हैं जिसके माध्यम से वे छात्रों को लक्षित करते हैं और उन्हें ड्रग का आदी बनाते हैं। डीलरों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को आकर्षित करके एक विशाल नेटवर्क बनाना और उन्हें प्रारंभिक चरण में मुफ्त में बेचना है। यह देखा गया है कि छात्र अनुचित उपेक्षाओं और तनाव से दवा का सेवन करते हैं। जब छात्र अपने आंदोलन या गुस्से को शांत करने के लिए किसी भी प्रकार का भावनात्मक समर्थन को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, तब वे इसका व्यापार करना शुरू कर देते हैं। छात्रों को इससे बाहर योग बनाने के लिए ड्रग बेचने में विकसित होते हैं। इस तरह ये क्रियों से एक शातिर नशीली दवाओं के नशेड़ी से बनता है। नशीली दवाओं के सेवन के कारण यह छात्र को मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देता है। वे उदास रहते हैं और जीवन में विभिन्न बीमारियों के अनुभव करते हैं। एक ड्रग एडिक्ट को पुनर्प्राप्त करना मुश्किल है और प्रक्रिया के सफल होने के लिए उचित कीमत भी शामिल है। इसमें ड्रग्स की लत से कैसे बचें? ड्रग्स की लत के कारण आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके बेहतर होने का कोई उम्मीद ही ना रह गई हो। लेकिन आदतें चाहे कितनी ही गहरी हों, अगर दृढ़ और धैर्य से हम छुटकारा पा सकते हैं। शुरुआत छोड़ने के कारणों को बताने से करते हैं, क्योंकि इससे आपको पूरी मदद मिलेगी अपने इस काम को बनाए रखने में। एक अच्छा प्लान बनाएं और छोड़ने के लिए परामर्शदाता और सपोर्ट ग्रुप से मदद लें और बिना ड्रग के अपना जीवन शुरू करें। यह 7 चरण हैं जो इस लत को छोड़ने में मदद करेंगे। चरण 1, यह निर्धारित करें कि आप ऐसा क्यों करते हैं। अपने बारे में ईमानदार रहें कि आप ड्रग्स या अल्कोहल का उपयोग क्यों करते हैं। चरण 2, इनकार करना। इनकार करने के लिए अपने तस्करम पक्ष को सुने और आपको बताता है कि आपकी लत अस्वस्थ है। चरण 3, जाने नया मैथुन कौशल। बुरी आदतों को छोड़ने और नए स्वस्थ लोगों का परिचय दें। चरण 4, अपने ट्रिगर को पहचानें। उन लोगों, स्थानों एवं स्थितियों को स्पष्ट करें जो आपकी लत को ट्रिगर करते हैं। चरण 5, आप जिस तरह जीते हैं उसे बदलें।
अपने वायरस का समर्थन करने के लिए वातावरण से मुक्त अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थानों और नए मित्र बनाने के लिए लगातार प्रयास न करें। चरण 6, एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। दोस्तों और परिवार को अपने करीब लाएं और क्योंकि वे आपकी रिकवरी का समर्थन करते हैं और उसके साथ सफलताओं और कुठाओं के बारे में संवाद करें। चरण 7, यह अंतिम चरण है। सफलताओं का जश्न मनाएं। पारपत्र आप एक लक्ष्य तय करिए, भले वो छोटा ही क्यों ना हो, और जब आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो उसके बाद अपने आप को पुरस्कारित करिए और उसका जश्न मनाइए। धन्यवाद।